ڈیئر آڈینس السلام علیکم. اس ماڈیول کا ٹائٹل ہے لینگویج فنکشنز. لینگویج فنکشنز کیا ہوتے ہیں اور ہمیں انہیں کیوں سیکھنا چاہیے؟ عام طور پہ ہم فیل کرتے ہیں ہم گرامر بہت زیادہ سیکھتے ہیں، وکیبلری بہت زیادہ سیکھتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں بولنا نہیں آتا. وٹ از دا ریزن بہائنڈ اٹ؟ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ ہمیں گرامر بھی آتی ہوتی ہے عام طور پر، وکیبلری بھی آتی ہے، ہم بول کیوں نہیں سکتے؟ Whenever we open our mouth, we do not feel very confident. This session teaches you how to initiate your conversation. یہ سیشن آپ کو یہ بتائے گا کہ آپ نے گفتگو کا آغاز کیسے کرنا ہے. اور اس ماڈیول میں ہم لینگویج فنکشن سیکھیں گے. لائک فار ایگزامپل ہاؤ ٹو گریٹ a familiar person, an unfamiliar person, how to make phone call, فون پہ کیسے بات کرنی ہے، کسی سے اگری کرنا ہے تو ہمیں کون سے جملے بولنے چاہیے، کون سے سینٹینسز بولنے چاہیے، کسی سے ڈس اگری کرنا ہے تو کون سے سینٹینسز ہوتے ہیں جو ہمیں یوز کرنا چاہیے. اسی طرح ہمیں یہ سیکھنا ہے جب ہم کسی سے ریکویسٹ کر رہے ہوتے ہیں تو کون سے وہ ایکسپریشنز ہیں، کون سے وہ جملے ہیں جو ہمیں استعمال کرنا چاہیے. اس سیشن میں ہم لوگ سیکھیں گے میکنگ ریکویسٹ. ڈیئر آڈینس، عام طور پر ہمارا خیال یہ ہوتا ہے جب نیٹو اسپیکرز آف انگلش جب وہ بولتے ہیں تو اپنے سے بڑوں کو رسپیکٹ نہیں دیتے اور وہ بہت فارمل نہیں ہوتے. دس از ناٹ دا رائٹ پرسیپشن. یہ آپ کا خیال ٹھیک نہیں ہے. جیسے ہماری زبان میں تو، تم اور آپ ہوتا ہے، ایسے ہی انگلش میں ہے. ہم عام طور پہ یو کو تم سے ٹرانسلیٹ کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ نیٹو اسپیکرز آف انگلش دے ڈو ناٹ پے ریسپیکٹ ٹو دیئر ایلڈرس. اور ہمارا یہ خیال ہوتا ہے کہ نیٹو اسپیکرز آف انگلش جو ہیں وہ اپنے سے بڑوں کا احترام نہیں کرتے. انگلش میں اردو ہی کی طرح بہت سارے ایسے جملے ہیں، بہت سارے ایسے ایکسپریشنز ہیں جو کہ اپنے سے بڑوں کے لیے، چھوٹوں کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں. ول یو گو دیئر؟ ول یو گو دیئر وٹ ڈز اٹ مین؟ اینڈ وڈ یو لائک ٹو گو دیئر؟ وٹ از دا ڈفرنس بٹوین ول اینڈ وڈ؟ دا یوز آف ول اینڈ وڈ. ول یو گو دیئر، وڈ یو گو دیئر. عام طور پر ہم وڈ کو ول کی سیکنڈ فارم سمجھتے ہیں. دس از ناٹ دا رائٹ پرسیپشن. ول یو ٹیک ٹی؟ تو نے چائے پینی ہے؟ یہ والی سینس کمیونیکیٹ کرتا ہے. اٹس اے ویری فرینڈلی ایکسپریشن. وڈ یو لائک ٹو ٹیک ٹی؟ یہ جب ہم کسی کے ساتھ بہت پولائٹ ہوتے ہیں، وڈ یو لائک ٹو ٹیک ٹی، آپ چائے پینا پسند کریں گے؟ یو سی، ون gives first sentence gives the sense of to, and the second sentence gives the sense of up. So it means first sentence is friendly and second is polite. Will you go there? Would you like to go there? Will you help me? Would you like to help me? Right? Same is the case with can and could. Can I have your name, please? Could I have your name, please? Can I have your name, please? آپ اپنا نام بتانا پسند کریں گے؟ Could I have your name, please? This sentence is used for giving more respect or it is very polite expression. Can I have your name? تمہارا نام کیا ہے؟ Could I have your name? آپ کا نام کیا ہے؟ You see, can is used when you are very friendly and could is used when you are very polite. Could I have your name, please? Can I have your name, please? Can I have a glass of water? Could I have a glass of water? Right? The first sentence جب ہم یوز تب کرتے ہیں جب ہم کسی کے ساتھ فرینڈلی ہوں، جیسے اپنے دوست سے بات کر رہے ہوں. اور کڈ جب یوز کر رہے ہوتے ہیں جب اپنے بڑوں سے بات کر رہے ہوں یا کسی کو جب ہم نے بہت زیادہ پولائٹلی بات کرنی ہو یا ریکویسٹ کرنی ہو. اچھا، ایک اور ایکسپریشن ہم دیکھیں وڈ یو مائنڈ گوئنگ دیئر. اٹ از آلسو ویری پولائٹ ایکسپریشن. وڈ یو مائنڈ always takes ing form of the verb. Would you mind helping me? Would you mind would you mind helping me? Would you mind going there? Would you mind making a phone call to me? Okay, would you mind is also very polite expression.
Remember this thing. Would you mind always takes ing form of the verb. अब ये देखिए एक और एक्सप्रेशन हम सीखते हैं. I wonder if you could help me. This expression is used when we are tentative. ये एक्सप्रेशन जब हम यूज करते हैं जब हम सोचते हैं कि हमें ये रिक्वेस्ट करनी भी चाहिए या नहीं ना करनी चाहिए. I wonder if you could go there. Here you are very tentative. You are not feeling very confident whether to make request or not. I wonder if you could speak a bit loudly. एक और एक्सप्रेशन हम सीखते हैं जो कि बहुत पोलाइट एक्सप्रेशन है. Could you possibly help me? This expression is also very polite. इसके बाद एक एक्सप्रेशन अब हम जो सीखने वाले हैं वो एक्सप्रेशन तब यूज करते हैं जब आप किसी से परमिशन मांग रहे हो. लाइक फॉर एग्जाम्पल, मे आई कम इन. दिस एक्सप्रेशन इज यूज वाइल सीकिंग परमिशन. जैसे लाइक फॉर एग्जाम्पल आप क्लास में एंटर होना चाहते हैं तो आप क्या पूछते हैं, आप टीचर से क्या कहते हैं, आप ये कहते हैं ना मे आई कम इन. वहाँ पे ये नहीं कहते कुड आई कम इन. और वहाँ पे आप पोलाइट नहीं होते, वहाँ पे आप फॉर्मल होते हैं. फॉर्मल तब होते हैं जब एक सिचुएशन की डिमांड हो तो एक एक्सप्रेशन वहाँ पर एक्सेप्टेबल होता है या फिर नहीं होता. तो वहाँ पर आप पोलाइट नहीं होंगे. वहाँ पे एक सिचुएशन का तकाजा यही है कि वहाँ पर आपको ये सेंटेंस लाजमी बोलना है. तो आप क्या यूज करते हैं, मे आई कम इन, मे आई कॉल यू, मे आई गिव अ कॉल टू यू. इस एक्सप्रेशन का मतलब ये है कि आप किसी से पूछ रहे हैं, परमिशन ले रहे हैं. ये नहीं कि आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं. इसी तरीके से कि एक एक्सप्रेशन और भी है. लाइक फॉर वो है माइट आई इंक्वायर योर नेम, माइट आई नो योर नेम. दिस एक्सप्रेशन इज ऑब्सलीट इन मॉडर्न इंग्लिश. आजकल की जो मॉडर्न इंग्लिश में ये एक्सप्रेशन जो है अब इस्तेमाल में नहीं आता, लेकिन ग्रामर के बुक में आपको ये एक्सप्रेशन भी मिल जाएगा. दिस एक्सप्रेशन इज वेरी वेरी फॉर्मल एक्सप्रेशन. ये कोई बहुत ही ज़्यादा फॉर्मल एक्सप्रेशन है. जैसे माइट आई इंक्वायर योर नेम, इसको आप अगर उर्दू में ट्रांसलेट करना चाहें तो इस किस्म की ट्रांसलेशन बनेगी, क्या मैं आपका नाम पूछने की जिसारत कर सकता हूँ. तो ये इतना फॉर्मल एक्सप्रेशन आजकल की इंग्लिश में इस्तेमाल नहीं होता. ये सिर्फ ग्रामर के बुक्स में आपको मिलेगा. तो ये जो परमिशन के जो एक्सप्रेशन थे ये दो थे हमने और जो आज सीखे, मे और माइट. एक एक्सप्रेशन है जो एम्फेसिस के लिए यूज होते हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल, डू कम टू माई ऑफिस. आपने मेरे ऑफिस लाजमी आना है. दिस एक्सप्रेशन इज यूज फॉर एम्फेसिस. लाइक डू कम टू माई पार्टी. राइट, आप किसी दोस्त को अपनी पार्टी में बुला रहे हैं तो उससे आप इनविटेशन कार्ड दे रहे हैं या वैसे बता रहे हैं तो आप कहेंगे डू कम टू माई पार्टी. डू गिव मी अ कॉल. मुझे लाजमी कॉल करना है या मुझे कॉल करना ना भूलिएगा. दिस एक्सप्रेशन डू विद बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड for emphasis. Do give me a call. Do come to my office. Do remember me in your prayers. Right? So this expression is used for emphasis. एक expression जो हम यूज करते हैं तो उसका मतलब है when you know the answer or when you are fairly sure about the answer. जब आपको पता है इसका जवाब भी क्या होना है. Like for example, shall I start? What does it mean? आप सोचते होंगे इसका मतलब क्या है. Shall I start means this expression is used when you are fairly sure that the answer would be yes. Shall I come to your office? Shall I start? It is equal to let's. Let's go there. Shall I start and let's, they are same. These expressions, they are used when you are very friendly. अब आपके जहन में सवाल आता होगा, why not use base form of the verb for making request? Like for example, come to my office. This expression is used when you are talking to your friend. Come to my office. आप मेरे ऑफिस में आइए. ठीक है, और आओ. अब आपको यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा पोलाइटनेस की ज़रूरत है ना बहुत ज़्यादा फॉर्मल होने की ज़रूरत है, क्योंकि आप अपने दोस्त से बात कर रहे हैं.
When you are using or when you use base form of the verb, it means you are very friendly. Come to my office, have a cup of tea, have lunch with me. अब जब अपने दोस्त से बात कर रहे होते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा पोलाइट या फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पर। आप जैसे अपने दोस्त से बात कर रहे हैं, मेरे ऑफिस तूने आना है, ठीक है? आप यहाँ तो बहुत उर्दू में जैसे आप हैं, बहुत ज़्यादा फॉर्मल भी नहीं है ना पोलाइट है। ऐसे इंग्लिश स्पीकर्स जो हैं वो भी ऐसे ही करते हैं। कम टू माय ऑफिस, हैव लंच विद मी, यानी दोपहर का खाना आपने मेरे साथ खाना है या तूने मेरे साथ खाना है, ठीक है? आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा पोलाइटनेस की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत सारे सिचुएशंस ऐसे भी आते हैं जब आपको ना तो फॉर्मल होने की ज़रूरत होती है, ना पोलाइट होने की ज़रूरत होती है। डियर ऑडियंस, लेट्स हैव अ क्विक recap of the functions which we have done during this session. आज के सेशन में जो हमने फंक्शंस किए हैं उनका रिकैप करते हैं। हमने स्टार्ट किया कैन और कुड के फंक्शन थे। कैन आपने हमने सीखा एक फ्रेंडली एक्सप्रेशन है। इट इज़ नॉट द फर्स्ट फॉर्म ऑफ कुड, रिमेंबर दिस थिंग। हियर कैन मीन्स फ्रेंडली और could means the use of could mean it, like जैसे हमने सीखा था ना, कैन आई हैव योर नेम, कुड आई हैव योर नेम। कैन का मतलब है तू या तुम की सेंस देते हैं और कुड जो है वो आप की सेंस देते हैं। विल यू गो देयर, वुड यू लाइक टू गो देयर। विल यू गो देयर मीन्स यू आर वेरी फ्रेंडली, जैसे कैन है। कैन और विल जो है बहुत फ्रेंडली एक्सप्रेशन है। और वुड यू लाइक टू गो देयर, इट इज़ वेरी पोलाइट एक्सप्रेशन। अब आपके ज़हन में सवाल तो आ रहा होगा, जब वुड और कुड दोनों पोलाइट हैं, तो हम इन्हें कहाँ यूज़ करना चाहिए? एक बात डियर ऑडियंस ज़हन नशीन कर लीजिए। वुड वहाँ इस्तेमाल करते हैं इफ़ यू आर सीनियर इन स्टेटस एंड एज। अगर आपकी एज में अगर आप किसी से ज़्यादा हैं या आपका स्टेटस या मर्तबा किसी से ज़्यादा है, तो आप वुड इस्तेमाल करेंगे। वुड यू लाइक टू टेल मी योर नेम? जैसे अगर आपका बॉस या आपसे कोई सीनियर आदमी आपसे बात कर रहा होगा तो वो वुड का इस्तेमाल करेगा। दोनों पोलाइट हैं, वुड एंड कुड, रिमेंबर दिस थिंग। और कुड तब इस्तेमाल करेंगे जब आप स्टेटस या एज में छोटे हों या बहुत ही ज़्यादा पोलाइट होना चाहते हो, तो फिर आप कुड का इस्तेमाल करेंगे। ये दोनों में फ़र्क आपने लाजमी रखना है, अदरवाइज कोई इसमें बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। बोथ आर पोलाइट एक्सप्रेशन। इसी तरह हमने सीखा वुड यू माइंड गोइंग देयर। ये भी बड़ा पोलाइट एक्सप्रेशन है, लेकिन हमने ये भी सीखा था पहले कि इसके साथ आपने आईएनजी फॉर्म लाजमी ऐड करनी है। वुड यू माइंड गोइंग देयर। इसी तरीके से हमने सीखा था आई वंडर इफ यू कुड गो देयर। ये एक्सप्रेशन तब यूज करते हैं जब आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील ना कर रहे हो कि ये रिक्वेस्ट करनी भी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप जब किसी से आपने ये किसी की बात समझ नहीं आ रही तो आप एक दफ़ा कहेंगे पार्डन, एक दफ़ा कहेंगे कुड यू स्पीक अ बिट लाउडर, तीसरी दफ़ा कहेंगे आपको सोचेंगे, रिक्वेस्ट करते हुए सोचेंगे ये मुझे अभी रिक्वेस्ट करनी भी चाहिए ना करनी, तो आप वहाँ ये कहेंगे आई वंडर इफ यू कुड स्पीक अ बिट लाउडर। फॉलो कर रहे हैं ना आप मुझे? तो वहाँ पर इसका मतलब ये होगा यू आर नॉट फीलिंग वेरी कॉन्फिडेंट, राइट? सो तो ये एक्सप्रेशन टेंटेटिव है। इसी तरीके से हमने सीखा मे और माइट का एक्सप्रेशन। मे और माइट तब यूज़ करते हैं जब हम किसी से परमिशन मांग रहे होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मे आई कॉल यू, राइट? माइट आई नो योर नेम। और माइट के बारे में हमने ये भी सीखा था कि ये एक्सप्रेशन जो है आजकल की इंग्लिश में इस्तेमाल नहीं होता, ये ऑब्सोलीट एक्सप्रेशन है। इसी तरह फिर हमने शेल का एक्सप्रेशन सीखा। शेल का एक्सप्रेशन तब यूज़ करते हैं जब आपको काफ़ी हद तक पता हो कि आंसर जो है यस होगा। इसी तरीके से शेल के बाद हमने बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ की, कम, कम टू माय ऑफिस। और ये एक्सप्रेशन तब यूज़ करते हैं जब जब अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो या तो अपने दोस्त से बात कर रहे होते हैं।
sir. Could I talk to you for a minute? Yes, sure. May I know my grades, please? I am in a bit of hurry now. You may come tomorrow. With due respect, sir, I really need to know. Your result is with office and it is closed now. Could there be any alternative, sir? Is it urgent? Actually, I have to apply for a scholarship. Oh, I see. Contact me through email then. Thank you so much, sir. I'm really grateful.